Hello students, good morning. Welcome to this e-class on the topic metal ligand bonding in transition metal complexes. So in the previous lecture, we learnt about the magnetic properties of octahedral complexes. So today we are going to focus on the crystal field splitting of d orbitals in tetrahedral complexes. Okay, so here you can see the figure. So now we will imagine a metal ion at origin which happens to be the center of a cube. ठीक है ना? तो जिस तरह से हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डिस्कस किया था कि हम एक घनीय आकृति का सहारा लेंगे जिसका कि केंद्र अक्षों का मूल बिंदु है, ठीक है ना, और इस बिंदु पर धातु आयन उपस्थित है. तो in an isolated ion the energy of all the 5d orbitals will be equal, that you know. Okay, but when ligands they come from infinity to form tetrahedral complexes, this degeneracy of d orbitals disappears. ठीक है ना? तो जैसे ही लिगेंड जो हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मेटल आयन के नज़दीक आएंगे तो ये जो डी ऑर्बिटल की जो डिजेनरेसी है दैट विल डिसअपियर. ठीक है ना? तो स्प्लिटिंग हो जाएगी डी ऑर्बिटल्स की. So here you can see from the figure that none of the 5d orbitals they lie in the directions of approaching ligands. ठीक है ना? तो देखो, आपको पता है कि एक घन में 6 फलक होते हैं, है ना? प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है, जिसके 4 कोने होते हैं. तो घन बनाते हुए ये फलक आपस में इस प्रकार मिलते हैं कि प्रत्येक कोना जो है 3 फलकों का मिलन बिंदु होता है. यू कैन सी, है ना? तो एक घन में कितने कोने हुए? 8 कोने हुए. ओके, जिसमें प्रत्येक फलक के ट्रांस कोनों को मिलाने पे 4 कोनों और 4 नए फलकों से बनी आकृति क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी, जिसके कि सेंटर पे जिसका सेंटर जो है वो इस क्यूब का सेंटर पर ही पड़ता है. तो अब इस टेट्राहेड्रॉन के चारों कोनों पे एक एक लिगेंड लिखने पे आपको एक क्रिस्टल टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड का निर्माण यू विल फाइंड इट. ठीक है ना? तो जब आपको पता है कि एक आइसोलेटेड मेटल आयन है, उसके पांचों डी ऑर्बिटल जो हैं उनकी ऊर्जा समान होती है, लेकिन जैसे ही इनफाइनाइट से लिगेंड के द्वारा एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाए जाने की प्रक्रिया होती है तो यह डिजेनरेसी समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. ठीक है ना? और फिगर 2.9 ए से ये एक मिसप्रिंट है. दिस इज़ नॉट फिगर 2.8 ए, यह है फिगर 2.9 ए. तो इस फिगर ए से स्पष्ट है कि कोई भी कक्षक जो है वो लिगेंड्स के विचलन की दिशा में नहीं पड़ता. ठीक है ना? तो however dxy, yz and dxz orbitals they are nearer to the ligands than the dx square y square orbitals. ठीक है? तो इस पॉइंट को मोर क्लियर बनाने के लिए लेट्स कंसीडर फिगर 2.9 का बी एंड सी, जिसमें कि dx square y square and dxy orbital of the metal ions they are shown in the tetrahedral field. Okay, so it is clear from this figure B that the lobes of dx square y square they are directed towards the center of the faces, जबकि ligands they occupy transcorners. मैं आपको बता ही चुकी हूँ उससे पहले. Thus dx square y square and dz square orbital will be very far away from the ligands. Okay, so the lobes of dx square dxy orbitals they are directed towards the center of the edges. ठीक है? ये here you can see. Now from figure 2.9c you have seen here. Okay, consequently in these complexes the triply degenerate set of dxy, yz and dxz they are which are collectively represented by the T2G. ना? तो
This triply degenerate set of xy, dxy, dyz and dxz will be more unstable than the Eg set of orbitals, that is dx square y square and dz square. So energy difference between the Eg and the T2g set of orbital is given by here delta T. Okay, T for tetrahedral. Now, which has been shown here in the figure. Now, so clearly splitting in tetrahedral complexes is opposite to that of octahedral complexes, right? So to preserve the center of gravity rule, each Eg set of orbital should be stabilized by kitna 0.6 delta t, and each T2g orbital should be destabilized by 0.4 delta t. So, as in the case of octahedral complexes, CFSE, that is crystal field stabilization energy corresponding to different configuration, can be determined by this following relation. ठीक है, ये किसके लिए वैल्यू ऑफ CFSE है 0.6 डेल्टा टी एन EG, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन EG सेट माइनस 0.4 n इन T2. ठीक है ना, तो n जो है Ne and Nt2 दे आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg and T2g set of orbitals. So finally we get if the cation and the anion, the cation anion distances are the same in both octahedral and tetrahedral complexes, it can be shown that delta T is found to be 4 upon n delta O. ठीक है ना, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया here फ्रॉम फिगर ए कि एक्स डी कोई भी जो आपका ऑक्टाहेड्रल सॉरी टेट्राहेड्रल फील्ड में कोई भी कक्षक जो है लिगेंड के अप्रोचिंग की डायरेक्शन में नहीं पड़ेगा ना, फिर भी डी एक्स वाई वाई जेड एंड डी एक्स जेड ऑर्बिटल जो हैं वह दूसरे ऑर्बिटल्स है ना जो ईजी है ईजी सेट टी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर की अपेक्षा लिगेंडों के अधिक निकट होते हैं। तो हम अगर यहाँ पे फिगर सी को कंसिडर करें जिसमें कि मेटल आयन के डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई कक्षकों को हमने टेट्राहेड्रल फील्ड में दिखाया है, तो हियर यू कैन सी फ्रॉम द फिगर बी दैट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल की जो लोब्स हैं वह क्यूब के जो फेसेस के केंद्रों की ओर ओरिएंटेड हैं, जबकि लिगेंड कहाँ है वह क्यूब के कोनों पे स्थित है। तो एक्स वाई यानी कि डी एक्स वाई ऑर्बिटल की जो लूब्स हैं वो दोनों कोनों के जो एज के मध्य की ओर पड़ती है। हाँ, पर कोई भी पांचों ऑर्बिटल्स में से कोई भी जो ऑर्बिटल है उसके लूब जो हैं लिगेंड की दिशा में नहीं पड़ रहे हैं ना। अब हमने डिस्कस कर दिया कि डी एक्स वाई वाई जेड एंड डी एक्स जेड ऑर्बिटल जो हैं अन्य दो ऑर्बिटल ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स जो हैं उसकी अपेक्षा लिगेंड के अधिक निकट पाए जाते हैं। तो क्या होगा कि लिगेंडों के द्वारा डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड जो हैं अधिक बल से जो है और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर जो है अपेक्षाकृत कम बल से प्रतिकर्षित होंगे। तो क्या होगा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में फर्स्ट 3 ऑर्बिटल जो हैं वह अधिक ऊर्जा के डिजेनरेटेड और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर जो हैं और लोअर ऊर्जा के डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होंगे। तो ईजी और टी टू जी कक्षकों के ऊर्जा अंतर को हमने डेल्टा टी से हम प्रदर्शित करते हैं और व्हाट वी फाइंड इज दैट कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की अपेक्षा जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें ऑर्बिटल्स का जो स्थायित्व का जो क्रम है वह अपोजिट होता है ना। तो ग्रेविटी रूल के अकॉर्डिंग जो है प्रत्येक ईजी कक्षक जो है वह 0.6 डेल्टा टी से ऊर्जा का एमिशन करेगा, उत्सर्जन करेगा, और प्रत्येक T2G कक्षक जो है वह 0.4 डेल्टा टी यानी कि 4dq ऊर्जा का अवशोषण करेगा।
हियर। तो इस प्रकार से जो है ऑक्टाहेड्रल व्यवस्था होने पे तो एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर जो हायर एनर्जी लेवल के हो जाते हैं, है ना। और जो टी टू जी सेट है वह लोअर एनर्जी लेवल के हो जाता है। लेकिन जब ज्योमेट्री जब टेट्राहेड्रल है तो यह स्प्लिटिंग उल्टी हो जाती है, यानी कि जो टी टू जी सेट है वह हायर एनर्जी लेवल के हो जाएंगे और जो ई जी सेट ऑफ ऑर्बिटल है यानी कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल जो है वो लोअर एनर्जी लेवल के हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो है धातु कक्षकों के सीधे ही लिगेंड की ओर नहीं पड़ने और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की अपेक्षा लिगेंड की संख्या कम भी होती है यहाँ पे, उसके कारण डेल्टा टी का मान जो है डेल्टा ओ की तुलना में अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है ना। तो हियर यू कैन सी दैट डेल्टा टी इज 4/9 डेल्टा ओ। और डेल्टा ओ की तुलना में डेल्टा टी का मान कम होने का एक कारण और भी है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो कक्षक हैं वो हम कह सकते हैं कि 6 लिगेंड से के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में केवल 4 लिगेंड होते हैं। ओके, तो द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी for different electronic configuration in tetrahedral field has been shown here in the coming table. Here you can see, तो यहाँ पे D1 से लेके D10 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए EG सेट और T2G सेट में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डेल्टा T दिखाई गई है एंड यू हैव नेट द वैल्यूज ऑफ नेट CFSE also. Now we will discuss the magnetic properties of the tetrahedral complexes on the basis of electronic configuration of the metal ion, है ना। तो here now we come to this part. तो now we come to D1 and D2 configuration. Okay, तो octahedral complexes, there are two degenerate set of orbitals lower energy in tetrahedral complexes. Okay, so metal ions with D1 and D2 configuration will form paramagnetic complexes in which the number of unpaired electron will be 1 and 2 respectively. ठीक है ना, ये आप फिगर में you can see on the screen. ठीक है ना। तो D1 के लिए तो EG1 T2G0 और D2 के लिए जो है EG2 एंड T2G0। ओके, तो D1 और D2 विन्यास वाले मेटल आयन और उनसे बने हुए कॉम्प्लेक्सेस का जो पैरामैग्नेटिज्म है वो समान होगा। ओके, नाउ वी कम टू द D3, D4, D5 एंड D6 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो theoretically metals having these configurations they should be able to form strong field and weak field complexes. ठीक है ना। तो मतलब इन चारों विन्यासों के लिए जो है theoretically strong field और weak field complexes का निर्माण संभव है। But all complexes except D4 strong field should be paramagnetic. ठीक है, तो यहाँ पे आप इस स्लाइड में यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर these are the strong and weak field complexes for the D3, D4, D5 and D6 configuration. Okay, so the figure is self-explanatory. You can see on the screen, right? ठीक है ना। तो D3 के लिए क्या हो गया, EG T2G1 and EG3 T2G0। इसी प्रकार D4 के लिए EG2 T2G2 एंड EG4 T2G0 एंड D5 के लिए EG3 T2G3 and EG4 T2G1 और D6 के लिए
Eg3 T2G3 and Eg4 T2G4. Okay, from weak field and strong field respectively. ठीक है. Now, although both the strong field and weak field type of complexes, they are theoretically predicted, formation of strong field complexes requires pi to be smaller than delta T, right? But the magnitude of delta T is so small even for the ligands capable of creating very strong crystal field that low spin tetrahedral complexes have not been isolated so far. Thus, for tetrahedral geometry, only spin-free complexes are known in which the number of unpaired electrons is the same as in the case of metal ion. ठीक है ना. तो आपको पता है कि क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के द्वारा, जैसे हमने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कस किया था, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए भी वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड के निर्माण का हम अनुमान लगा सकते हैं, है ना, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा. लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस तभी बनते हैं जब डेल्टा टी का मान पाई की तुलना में अधिक हो, है ना. डेल्टा टी इज इक्वल टू ग्रेटर देन पाई पेयरिंग एनर्जी. लेकिन डेल्टा टी का जो मान है वह डेल्टा ओ के मान का लगभग आधा होता है. इतना कम होता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट टेट्राहेड्रल फील्ड वाले कॉम्प्लेक्सेस के लिए भी डेल्टा टी का मान जो है पाई से कम ही रहेगा. परिणाम स्वरूप जो है मेटल आयन जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण ही नहीं करते और केवल वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस ही बनते हैं, दैट इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. तो इनमें उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे जितने की कॉम्प्लेक्स बनाने के पूर्व जो है मेटल आयन में पाए जाते हैं. सो दिस वाज द केस फॉर दिस डी set of D3, D4, D5 and D6 configuration. Now we come to the D7, D8, D9 and D10 configuration. Right. Only one type of complex is possible for this configuration. ना, जैसा कि आप देख सकते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं दे tetrahedral complexes of such metal ions will be paramagnetic, having the same number of unpaired electron as in the case of metal ion. आपने टेबल को भी देखा था. तो जो D7 metal ion है and its complexes, they have 3 unpaired electron. The added electron pair the spin and hence the number of unpaired electron for D8 configuration is reduced to 2 and for D9 configuration it is reduced to 1. And as you know, expected भी है कि D10 configuration will be diamagnetic. Thus it is quite clear that the only D0, D4 and D10 metal complexes will be diamagnetic. ठीक है ना. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की जैसे जो D7 कॉन्फ़िगरेशन है और उसके कॉम्प्लेक्स हैं उसमें तो अनपेयर्ड 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे. जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी क्या होगा, T2G कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग होती जाएगी तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वह घटती जाएगी. और इसी प्रकार D8 कॉन्फ़िगरेशन के लिए 2 और D9 के लिए 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा. और D10 कॉन्फ़िगरेशन वाले मेटल आयंस तो डायगोनैलिटिक कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण करेंगे, दैट यू नो. तो स्पष्ट है कि D7 और स्ट्रॉन्ग फील्ड D4 और D10 विन्यास वाले जो कॉम्प्लेक्स आयन हैं वो ही डायमैग्नेटिक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होंगे. बाकी सभी मेटल आयन जो हैं वो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे. ओके, सो this was all about the magnetic properties of tetrahedral complexes. So in the next lecture we will discuss the splitting of d orbitals in square planar complexes. So see you there. Goodbye.